પોઈન્ટ એટલે મુદ્દા મુદ્દા 5 લખી નાખ્યા 6 લખી નાખ્યા પછી વાંચવાના આંખો બંધ કરી મગજમાંથી રિવિઝન કરવાનું 1 નંબર પર શું 2 નંબર પર શું 3 નંબર પર શું 4 પર શું 5 પર પછી રિવર્સમાં 5 4 3 2 1 પર શું અને આમ કરવાથી તમને યાદ રહી જશે. To be successful in 21st century, अब जिस बच्चे को धीरे धीरे दिखाई दे रहा है वो हमारे साथ नीचे से ऊपर की ओर मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे. अर्निंग अर्निंग ऊपर, जॉब अपनी बिजनेस ऊपर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डॉट. इस परिवार माटे खूब ज गर्वनो दिवस है कारण के अमरा बाळकोने इस परिवारना बाळकोने एमना मोळेनु सांभळ्યું कई वखत के साहेब पोलीस स्टेशन में अमारे जवुं होय तो शुं करवानुं पोलीस थी एमने बહુ બીક होय છે परंतु पोलीस જેટલો મિત્ર તમારી પાસે દુનિયામાં કોઈ નહીં હોય કે તમારો જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે તમે માતા પિતા કરતા પણ પહેલા તમે પોલીસ પાસે જઈ શકો છો એ તમને પ્રોટેક્શન આપી શકે તો આ બાળકોના જે મનમાં મૂંઝવણ હતી એ મૂંઝવણ દૂર થાય એના માટે શાળાના મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફ તરફથી રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી અને આપણી રિક્વેસ્ટ આપણે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ અને પીએસઆઈ સાહેબને આપણે કરી અને તેમનો કિંમતી સમય આપી અને અહીંયા આવ્યા છે તે માટે એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અમારા જે પોલીસ પરિવારના બાળકો છે એવો ઇન્સ્પાયર થાય એમને જોઈ કે એમને પણ એવી ઈચ્છા જાગે કે ઉપરવાળો અમને પણ ખુશી નસીબ આપે અને સાથે સાથે આપણા વાલી સૈયદ સાહેબ કે જે સરખેજ મકરવા વિસ્તારની અંદર ખૂબ જ જૂના સમયથી ખૂબ જ ઘણા સમયથી સેવા આપી રહ્યા અને આપી પણ છે એમને ઘણી કુરબાનીઓ આપી છે અને કોઈ દિવસ પણ એમને ખુશી કે સત્તાની લાલચ રાખી નથી તો એના માટે આજે પણ સરખેજ અને મકરવા વિસ્તારના ગલી ગલીમાં એમનું નામ ગુંજે છે એમનું કામ બોલે છે એ નથી બોલતા એમનું કામ બોલે છે એમનું કામ બોલે એનું ઉદાહરણ ફક્ત આપણી સામે જ છે કે એમને એક વખત મેં આમંત્રણ આપ્યું સમય કાઢી અને જો પણ આપી ગયા તેમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનું અને સાહેબને ખૂબ જ મારા હૃદયથી ખૂબ જ એમનો આભાર માનું છું એમણે જે સરખેજ વિસ્તારની અંદર જે સેવા આપી છે તે ખૂબ જ સરાહના પાત્ર છે
કારણ કે સરકારી વિસ્તાર એવો છે કે લોકોના મનમાં એવું છે કે ખૂબ જ સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે. આવા વિસ્તારની અંદર કામ કરવું એક ચેલેન્જ હોય છે. તો તેમણે ચેલેન્જ સ્વીકારી અને સંવેદનશીલ વિસ્તારની અંદર ઘણા સમયથી થતા ક્રાઇમોને તેમણે અટકાવ્યા છે. જે લોકોના મનમાં બીક હતી એ બીકને દૂર કરી છે અને તેમણે કોઈ પણ નાત જાત કે કોમનો ભેદભાવ કર્યા વગર કામ કર્યું છે. તે બદલ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને આગળ એ જ્યાં પણ જાય ઉપરવાળા એમને ખૂબ ખુશીઓથી નવાજે અને એમને ખૂબ જ તરક્કી આપે. સાથે સાથે શર્મા સાહેબ એમના જોડીદાર છે પીએસઆઈ સાહેબ, એમનો પણ હું ધન્યવાદ આપું છું. કારણ કે ટીમ હોય તો જ કેપ્ટન સારું બિહેવિયર કરી શકે. તો ધુલિયા સાહેબની પાસે જે પીએસઆઈની જે કોન્સ્ટેબલ હતા એમની ટીમ ખૂબ જ સરસ હતી. એમણે બધાને સાથે લઈને ચાલ્યા અને એમણે બધાએ સાથે મળી અને સાહેબને સાથ સહકાર આપ્યો. તો સાહેબ હતું એમનો પણ આભાર માનું છું. અને હું ધુલિયા સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરી કે કંઈક બે શબ્દો એવા કહે કે જેથી અમારા બાળકો ઇન્સ્પાયર થાય. ઇન્સ્પાયર તો થઈ જ જાય એમને જોઈને અને એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધુલિયા સાહેબને વિનંતી કરી કે બે શબ્દો કહી અને અમારા બાળકોને ઇન્સ્પાયર કરે. નમસ્કાર. ઉમેશ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી શ્રી શૈલેષભાઈ, અગ્રણી સાહેબ, પ્રિન્સિપાલ સાહેબ, સ્ટાફગણ, મારા સાથી શ્રી શર્મા સાહેબ, ઉમેશ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી, આ બધા 12માના વિદ્યાર્થી છે. 10 અને 12. તો બે ત્રણ વસ્તુ હું 2-3 મિનિટમાં જ વાત પૂરી કરીશ. તમારા સિટીઝન કેવા હોવા જોઈએ, નાગરિક કેવા હોવા જોઈએ, તો એ દેશના બંધારણ અને દેશના કાનૂનના નિયમોનું પાલન કરવાનું. તમે એને ગર્વની અનુભૂતિ કરવી જોઈએ કે બધા મને સિંગલ પ્રોજેક્ટ હું ઊભો છું ને બસ એનું મને ગર્વ છે. લોકો શું કરે છે, કોણ શું કરશે એ આપણે નથી વિચારવાનું, પણ મારે શું કરવું છે. આ જે ટ્રાફિકની સેન્સ છે, જાહેરમાં આપણે લોકો સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરવાનું છે, આપણા માતા પિતા સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરવાનું છે, શિક્ષકો સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરવાનું છે, આપણા મિત્રો સાથે કેવી રીતે રહેવાનું છે, આ બધી વસ્તુઓ આપણે સ્કૂલથી જો બાળકોને ટ્રાફિક સેન્સ ત્યાં શીખવાડીએ ખૂબ સારું રહેશે. હવે પોલીસ વિભાગ તરફથી પણ ઘણા કાર્યક્રમો થાય છે. સ્કૂલના બાળકોને ટ્રાફિક અવેરનેસમાં જોડવામાં આવી છે. પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ પણ આપણે કરાવીએ છીએ. અહીંયા પણ ઘણી સ્કૂલો પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ કરી ગઈ છે. ગ્રુપમાં પોલીસનું કામ કેવી રીતે ચાલે છે આપણે સમજાવીએ છીએ. અને પોલીસ જે છે પ્રજાનો મિત્ર છે. પોલીસ લોકો માટે છે, લોકોને એ સજ્જન સારા માણસોની સુરક્ષા માટે છે. જે સજ્જન લોકો છે, જે સારા રસ્તે કામ કરે છે, એ લોકો પોતાનું કામ વધુ સારી રીતે કરી શકે, સુરક્ષા મળે, સારું વાતાવરણ મળે, એના માટે પોલીસ રાત દિવસ કામ કરતી હોય છે. आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में कोएस हाई स्कूल आई हुई है। हर महीने 2 महीना यहाँ पर जो है प्रोग्राम होते रहते हैं, कुछ फंक्शन होते रहते हैं, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले और बच्चों के अंदर पढ़ाई का उत्साह बढ़े। पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। पेरेंट्स का उत्साह बढ़े, पेरेंट्स को मोटिवेशन मिले कि हमको हमारे बच्चों को किस तरह से स्कूल से आने के बाद घर पर कैसे। मैनेजमेंट से हमारे साथ सईद पटेल मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं कि सर कैसे देखते हो, आमतौर पर जो है स्कूलों में प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर उसका खर्च भी डाला जाता है कुछ फ़ीस के तौर पर। यहाँ पर इतने प्रोग्राम होते हैं, आमतौर पर पेरेंट्स से फ़ीस ली जाती है या ये मैनेजमेंट अपनी तरफ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी कौम के अंदर ख़ास करके मुस्लिम विस्तारों जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वहाँ पर ऐसी स्कूलों का होना एक सबसे बड़ी चैलेंज की बात है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्कूलें होती हैं उसके अंदर तो बहुत सारे मोटिवेशन के प्रोग्राम होते हैं, गिफ्ट बांटने के प्रोग्राम होते हैं, तरह तरह के बहुत ही जात के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास की जो स्कूलें होती है
उसके अंदर जो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ऐसा प्रोग्राम करना स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंज की बात होती है, क्योंकि वहाँ पर वालियों की अपेक्षा बहुत होती है। तो इस अपेक्षाओं को पूरे करने के लिए खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो सबके मन में ऐसा होता है कि अगर जो प्रोग्राम करते हैं तो वालियों से खर्च वसूल करना तभी हमारा खर्च पूरा होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुर्बानियाँ हमें भी देनी पड़ती है। आज अगर जो गरीब विस्तार के अंदर मिडिल क्लास के अंदर बैठे हैं तो हमें भी कुर्बानी देनी है, सिर्फ खर्च वालियों पर डालना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो बड़े बड़े प्रोग्राम बड़ी स्कूलों में होते हैं तो हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि मिडिल क्लास की बस्ती है, वहाँ पर ये जो स्कूल है यहाँ पर ऐसे मास्टर स्ट्रोक जैसे प्रोग्राम हो, उसका खर्च हम खुद ही उठाते हैं। वाली के पास से 1 रुपया भी इसका खर्चा लेने में नहीं आता। और इसके पहले भी जो हमने गिफ्ट वितरण किया, छोटे बच्चों को स्कूल बैग दी और 6 से 12 जिसके बच्चों को चोपड़े और नोटें बांटी, उस प्रोग्राम में भी किसी के पास से भी 1 रुपया खर्च नहीं लेने में आया। और अभी 24 तारीख के दिन मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, उसमें भी वालियों के पास या बच्चों के पास से कोई भी एक्स्ट्रा फीस लेने में नहीं आती। ये प्रोग्राम का खर्चा मैनेजमेंट खुद उठाती है। और उसमें इंटेंशन यही है कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास के बच्चे और पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंस्पायर हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन का लाभ लो, वही हमारा इंटेंशन होता है। सर, खास तौर पे आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर सरखेज पुलिस थाना से पुलिस इंस्पेक्टर को भी इनवाइट किए गए, तो उसके पीछे का क्या मकसद है? आज जो प्रोग्राम था मास्टर स्ट्रोक का, उसके साथ साथ हमारा इंटेंशन ये भी था कि जो प्रजा और पुलिस के बीच में जो दीवार है उस दीवार को तोड़ने की कोशिश हमने की है। उसको तोड़ने के लिए पहले जब बच्चे छोटे होते तभी से तुम्हें करनी चाहिए। तो आज हमारे मैनेजमेंट ने ये सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, उनके सामने ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर को खड़ा किया जाए तो जो भी इनके बच्चों के अंदर डर है, प्रजा के अंदर जो पुलिस का डर है कि बस पुलिस तो सिर्फ सज़ा देने के लिए, ऐसा नहीं है। और पुलिस इंस्पेक्टर के खूब आभारी है हम कि उन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों को इंस्पायर किया। इससे जो प्रजा और पुलिस के बीच की जो दीवार है वो तोड़ने की हमने कोशिश की है, जिससे बच्चे इंस्पायर होकर उनका भी एक सपना हो, उनके वाली का भी सपना होता है कि अगर आज इन लोगों को हम इस कुर्सी पर देखते हैं, कल उनके हम हमारे बच्चों को इस कुर्सी पर देखें। उसके लिए बच्चों में इंस्पायर होवे, वो हिसाब से हमने ये प्रोग्राम रखा है। और ये पुलिस स्टेशन के भी हम बहुत आभारी है कि इन्होंने आके हमारे बच्चों को इंस्पायर किया। सर, आपने मैनेजमेंट ने इन्हें मोमेंटो ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया गया, कैसे देखते हैं इनके काम को? आज सरखेज पुलिस स्टेशन के पीआई को और पीएसआई को जो मोमेंटम दे के जो उनका सम्मान किया गया, वो उनका सम्मान किया गया, उनकी काम की सराहना की गई है। क्योंकि आज कोई भी इंसान काम करता है उनके काम को सराहना चाहिए, वो हमारा फ़र्ज़ है। तो सरखेज विस्तार के अंदर जो सरखेज पुलिस स्टेशन काम करता है उस हिसाब से सिर्फ पीआई की नहीं लेकिन जो सारा स्टाफ है उसका सम्मान है। ये यहाँ के सरखेज पुलिस स्टेशन की प्रजा का सम्मान है, सिर्फ ये पीआर और पीएसआई का सम्मान नहीं है। वहाँ पर जितना भी स्टाफ काम करता है और सारी सरखेज की प्रजा है, ये सबका सम्मान है। और ये हमारा करना हमारा फ़र्ज़ है। और इसी के और ये बच्चों ने भी हमको इसमें साथ दिया, उसके हम बच्चों का भी खूब शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये भी कहा गया कि अब आने वाले दिनों में सरखेज पुलिस थाना की विजिट बच्चों को कराई जाएगी। मतलब ये सरखेज जुहापुरा की स्कूलों में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्टिविटी होगी कि स्कूल के बच्चों को पुलिस थाना की विजिट कराए, तो वो क्या वजह रहेगी? आज हमने पीआई के साथ चर्चा करके ऐसी भी बात की कि हमारे बच्चों को पुलिस स्टेशन की विजिट करानी है। जैसे कि विजलपुर पुलिस स्टेशन है, सरखेज पुलिस स्टेशन है, अलग अलग पुलिस स्टेशन की उनको विजिट करवा कर जो बच्चों के दिल में जो डर होता है वो डर को निकालना है। और पुलिस स्टेशन में किस तरह की कामगिरी होती है वो ज्ञान बच्चों को मिले, यही हमारी एक कोशिश होगी। इस कोशिश में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको साथ देंगे, इसी उम्मीद हम रखते हैं। चलिए, तो ये थे कुवैस हाई स्कूल से प्रिंसिपल, और हमने जैसे डायरेक्टर से बात करी सईद पटेल सर से, किस तरह का मैनेजमेंट है। आपने इनकी दोनों की बातों से ही आपने पूरा समझ लिया होगा कि कैसे बच्चों को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, उन्हें तैयार किए जाते हैं, और मैनेजमेंट की कितनी भूमिका है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। पेरेंट्स से ज़्यादा इन्हें फ़िक्र और चिंता रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उन पेरेंट्स का सम्मान भी किया जाता है जो पेरेंट्स स्कूल में जो है रेगुलर हाजिरी देते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी उनको देखकर ये मोटिवेट हो कि हमें भी अपने बच्चों को चिंता करनी चाहिए जिस तरह से स्कूल उनके बच्चों की फ़िक्र रखती है। उम्मीद है ऐसे प्रोग्रामों से, ऐसी स्कूलों से कि पिछले साल जिस तरह का 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट आया, आने वाले दिनों में इस साल इससे भी बढ़कर जो है कुवैस हाई स्कूल का रिज़ल्ट आ सकता है, जिस तरह की इनकी तैयारियाँ हैं। अब देखा यह जाएगा कि मुस्लिम स्कूल में और मुस्लिम एजुकेशन में लोग काफ़ी जो है समझ तो देते हैं कि समाज में एजुकेशन आना चाहिए, मुस्लिमों में एजुकेशन आना चाहिए, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखकर ये पूछिएगा उन संस्थाओं से, उन स्कूलों से कि स्कूल की फ़ीस इतनी हाइप होती है, उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, कहीं परिवार उससे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
मेहरबानी करके अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसे प्रोग्राम को, आप खुद नहीं अरेंज कर पाते हैं, तो मत कीजिए ऐसे प्रोग्राम, ताकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से न पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएं, उनको स्कूल छुड़वाने के लिए मजबूर हो जाएं, या उन्हें शर्मिंदा होना पड़े कि हम अपने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस की या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम हो तो उसकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आप नहीं पहुँच सकते हैं, आप नहीं उसे जो है अफोर्ड खुद नहीं कर सकता है मैनेजमेंट, तो ऐसे प्रोग्राम को ना करी मेहरबानी करके। और फिर आप ये दावे करते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन का स्तर कम है, तो मैं उन संस्थानों से ये भी कहूँगा कि आप जैसी संस्थाओं ने एजुकेशन के स्तर को घटाने की जो है शुरुआत की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुवैस हाई स्कूल ने वो कदम बढ़ाए हैं कि जो स्तर घटता गया है मुस्लिम समाज की एजुकेशन का स्तर घटता गया है समाज में से, उस स्तर को जो है यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए लाइनें होगी और लोग बाहर वेटिंग में खड़े होंगे कि हमें इस स्कूल में पढ़ना चाहिए और हमारे बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।